Today we'll be seeing a topic as alternator on load. Alternator on load. Okay, we'll be seeing this topic today, and by this class end we will be defining regulation. Alternator का regulation क्या है? Explain the effect of power factor on regulation. What is the difference between DC generator and AC generator? That is alternator based on its power factor. Okay, so in DC, what is effect of power factor? In what alternator, the effect of power factor, वो भी बात करेंगे. Alternator लोड किए तो उसमें पावर फैक्टर का क्या इफेक्ट है वो बताएंगे आज. और ये अल्टरनेटर का रेगुलेशन फाइंड आउट करना है हमें. उसमें एक फैक्टर है E0 जैसा, वो भी देखना है. ये क्लास ऐसा होगा, उसमें टॉपिक इंटरकनेक्टेड होगा, क्योंकि पूरा ध्यान से सुना नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा. सो प्लीज ट्राई टू कंटिन्यू दिस आइटम. Okay, so we'll be discussing the alternator on load today. On the picture, you are seeing an alternator which is under no load condition. Under no load condition, you can see obviously load is not connected in the left side, and alternator has been connected to a load in the right side. Okay, so the voltage under no load, it is E0. Under no load E0 होता है, और alternator लोड किए तो उसका वोल्टेज V होगा. अब क्या सोचते का E0 और V के बारे में? वो बराबर होगा और ज्यादा होगा और कम होगा. Okay, so alternator under no load, let us say it is having a voltage of E0, and जब वो लोड करते हैं तो वो बनाता है V. मेरा सवाल ये था, ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा और सेम होगा? क्या सोचते हो? Anyway, I'll tell there will be some differences. Okay, उसको बताता है the regulation. Okay, so regulation we'll be seeing in a definition for that. So under no load, what is happening? There is a E0. Under load condition, there is a voltage of V. Now, what is the voltage regulation of alternator? We'll be getting a definition now. We are going to define it. It is a change in voltage when full load is removed. Okay, so the voltage at no load was E0, and at full load it is V, and the change in load voltage from full load to no load. Okay, that is E0 minus V. It is expressed as a percentage of full load voltage. तो ये रहा equation for regulation of alternator. Alternator का regulation ये है E0 minus V by V. तो इतना सिंपल है. क्यों इतना बताता है पूछता है होगा. अब ना सोच में ये होगा, ये इतना इंपॉर्टेंस क्या है. सोचो आप एक कोई खेल के लिए जा रहा है. खेल तो वो फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है. आप कुछ देर खेल दिया, or maybe half an hour. How the beginning you will be, and at the end what will happen to you? You will be totally tired, is it not? At the end of the game, you will be totally tired because you need more oxygen, you need more rest. So it is a health condition. किसको अच्छा लगेगा? जो पूरा स्टामिना होता है, जिसके लिए स्टामिना ज्यादा है, उसके लिए अच्छा होगा. डेली प्रैक्टिस करता है, डेली अच्छा खाना लेता है, बहुत सारा फैक्टर्स है हमारा अपना हेल्थ में. According to our health, when we are playing cricket or football, after half an hour we may be getting totally tired, and it depends on our health conditions. We may be having good food, or we have to take good food, we have to practice. There are a lot of factors on our health conditions. Okay, so there will be tiredness, but tiredness कितना ज्यादा हो सकता है. Okay, so there is a condition for the health of alternator also. Alternator का health भी important है, क्योंकि आप एक कोई कंपनी शुरू कर दिया और कंपनी में काम करता है, आपको कोई नया अल्टरनेटर खरीदना है, तो अच्छा हेल्थ वाला अल्टरनेटर लेना है आपको. सो उसका हेल्थ का एक मेथड है ये रेगुलेशन बताना. सो the healthiness of an alternator can be expressed in the terms of its regulation. Okay, so the regulation will be expressed. It is giving a health condition of the alternator. अच्छा alternator है तो रेगुलेशन अच्छा होगा, रेगुलेशन अच्छा होगा. तो अभी सोचता है अच्छा रेगुलेशन क्या है, बुरा रेगुलेशन क्या है. ओके, वो उसके बारे में आज बताएंगे.
तो क्यों अल्टरनेटर पे रेगुलेशन आता है? व्हाई अल्टरनेटर इज हैविंग रेगुलेशन? दिस इज अ स्मॉल पिक्चर फॉर दैट. You will be seeing E0 internally inside the alternator. Alternator के अंदर E0 आता है. Generally, it is the induced EMF in the armature. Armature के अंदर जो वोल्टेज आता है उसमें E0 आता है और लोड पे V आता है. तो कुछ ड्रॉप आता है internally in the alternator. Inside some drops are happening. That is creating what? This voltage regulation. So this is the reason for creation of alternator load. Alternator regulation के रीजन ये है, उसमें कुछ इंटरनल ड्रॉप होता है. ओके, तो क्या इंटरनल ड्रॉप है उसमें वो चेक करना है आज हमें. ओके, दैट बी टेकन. अभी मेरा सवाल है, मैंने बताया गुड रेगुलेशन होना है. गुड रेगुलेशन कब होगा? वही अभी लिखा है, आइडियल और बेस्ट रेगुलेशन. Ideal means it not be a practical condition. Practically it may not be working, but it is an ideal condition. Ideal तो 0% होना है. Okay, 0% होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा है और आइडियल कंडीशन. लेकिन अप टू 5%, 5% तक रेगुलेशन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा. Okay, okay, so this is happening in regulation. So ideal regulation is 0%. Best regulation is 0%. And what happens at 10% regulation? 10% regulation है तो पूरा खराब हो जाएगा. हमारा इक्वेशन एक बार भी सोचेंगे, E0 माइनस V by V. E0 सोचो 400 वोल्ट है, 400 वोल्ट है. E0 400 वोल्ट है. अभी सोचो E0 माइनस V हो गया 380. ओके, so 400 minus 380 by 380, it will be having small percentage. Okay, अभी सोचो E0 400 है और VB 400 है. E0 400 है, VB 400 है, तो क्या होगा? E0 400, V 400, 400 minus 400 0. So 0 by 400 will be 0 only. So that is a best condition. आप अल्टरनेटर लोड किया, आप अल्टरनेटर लोड किया तो भी क्या होगा? उसमें वोल्टेज सेम हो जाएगा. मतलब ये है, नो लोड कंडीशन में 400 वोल्टेज अल्टरनेटर को मिलता है और लोड कंडीशन में भी 400 मिलेगा. ओके, सो दिस इज हैपनिंग इन लोड कंडीशन. सो दिस इज द परफेक्ट रेगुलेशन. 0 condition or maximum up to 5%. It is a maximum condition. Up to 5% it is acceptable. Okay, now we'll be seeing the next item. ये इंपॉर्टेंट चीज है. सो आई विल बी टेलिंग समथिंग. कोई लोड कंडीशन में फुल लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से ज्यादा हो सकता है. ऐसा सुना है आपने? हमारा डीसी जनरेटर तो नॉर्मली क्या होता है, लोड किए तो वोल्टेज कम होता है, लोड किए तो वोल्टेज कम होता है. ओके, लेकिन अल्टरनेटर में जब किसी कंडीशन में लोड दिए तो क्या होगा? उसका वोल्टेज ज्यादा होगा. ओके, लोड ज्यादा दिए तो वोल्टेज ज्यादा आने का चांस है. ओके, सो दिस इज अ गुड इंटरेस्टिंग कंडीशन. हमारा क्लास में ये बताएगा ये क्यों होता है. वी विल बी टेलिंग व्हाई इट इज हैपनिंग. ओके, at what condition we'll be knowing when the full load voltage will be more than the no load voltage. इसका मतलब ये है, नो लोड में एक अल्टरनेटर पे 450 वोल्ट है, लोड किया, अब देखता है उसका वोल्टेज कितना हो गया? 420. 415 से आगे बढ़ा, 420 बन गया. पूरा लोड में नहीं, लेकिन कोई लोड कंडीशन में. ये कौन सा लोड कंडीशन में आपको जानकारी होगा ये क्लास के अंत में. ओके, सो ऐसा एक चीज आप देखेंगे. लेट अस सी, देयर इज अ कंडीशन लाइक फेरांडी इफेक्ट. ओके, आई विल बी टेलिंग ए वर्ड लाइक फेरांडी इफेक्ट. ये अल्टरनेटर से डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, फेरांडी इफेक्ट. ओके, लेट अस से ये ट्रांसमिशन लाइन का सेंडिंग एंड वोल्टेज है. सेंडिंग एंड एरिया, दिस वन. The transmission line, it is having a sending end, that is generating station, and that is a sending end. जो जिधर से भेज रहा है उसको sending end बताता है, और कंज्यूमर इधर रहेगा उसको बताता है receiving end. ओके, तो ये पावर सिस्टम में रिसीविंग एंड में ज्यादा वोल्टेज मिलेगा.
और कंपेयर करें तो सेंडिंग एंड से ज्यादा वोल्टेज रिसीविंग एंड पे मिले तो उसको बताता है ये फेरांडी इफेक्ट। हमारा अल्टरनेटर का रेगुलेशन हमने बताया, ऐसा ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड टू पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में जब रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग इन वोल्टेज से ज्यादा होता है उसको बताता फेरांडी इफेक्ट। ये फेरांडी इफेक्ट जैसा ही होगा, अल्टरनेटर में कोई लोड इंक्रीज किए तो उसका नो लोड वोल्टेज से अधिक होगा उसका फुल लोड वोल्टेज। ओके, सो इट इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल। तो आपका सीएटीएस सिलेबस में ये वर्ड है फेरांडी इफेक्ट। फेरांडी इफेक्ट इट इज द इंक्रीज इन वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड कंपेयर टू सेंडिंग एंड। ये होता है बड़ा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, शायद 200 किलोमीटर से आगे में, मोर देन 200 किलोमीटर है तो उसमें लोड बहुत कम है तो उसमें होता है ये प्रॉब्लम, तो ये इफेक्ट। सो फेरांडी इफेक्ट होगा ज्यादा लंबा वाली ट्रांसमिशन लाइन में 200 से आगे, 200 से आगे, और क्या है उसमें होगा नो लोड, ऑलमोस्ट नो लोड में ये होता है। ओके, तो ये कीवर्ड आप ध्यान में रखिए, फेरांडी इफेक्ट। जब रिसीविंग एंड पे ज्यादा वोल्टेज आता है सेंडिंग वोल्टेज से अधिक, उसको बताता है क्या, फेरांडी इफेक्ट। तो हम इधर क्यों बताया, अल्टरनेटर में ऐसा होगा जब एक पर्टिकुलर लोड उसको देता है उसका वोल्टेज अधिक होगा, किससे, नो लोड वोल्टेज से अधिक होगा उसका फुल लोड वोल्टेज, ऐसा अल्टरनेटर में होता है। वो क्यों होगा, कैसे होगा, हमारा दूसरा स्लाइड पे आएगा। ओके, सो देखना है हमें। तो हमने बताया कुछ इंटरनल ड्रॉप्स होता है अल्टरनेटर में, पहला स्लाइड में हमने बताया अल्टरनेटर के अंदर कुछ इंटरनल ड्रॉप्स है। इनसाइड द अल्टरनेटर there are some internal drops. Due to the internal drops the voltage variation happens. Okay, so we will be seeing what are the alternator inside drops. Okay, so कंपेयर किए तो ये डीसी जनरेटर की तरह ही है। डीसी जनरेटर में क्यों वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसका तरह ही है अल्टरनेटर में बहुत ज्यादा। तो हम बताएंगे क्या क्या है। सो टर्मिनल वोल्टेज इज ड्रॉपिंग ड्यू टू द रीजंस, हम बताएंगे क्या क्या रीजन है। हमने बताया इंटरनल ड्रॉप है। सो अभी किसके बारे में बताता है, अल्टरनेटर का ड्रॉप के बारे में। अल्टरनेटर ड्रॉप लोड कर दिया, वोल्टेज वेरिएशन होता है। तो वोल्टेज वेरिएशन क्यों होता है, उसका आंसर है 1 to 3। उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स होता है, हम एक एक करके बताएंगे क्यों ड्रॉप होता है। ओके, तो देखेंगे पहले वाला, इट इज ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर रेजिस्टेंस है, आर्मेचर में वाइंडिंग है और वाइंडिंग में रेजिस्टेंस है। So there is an armature and obviously we are getting output from armature. There is resistance inside the winding and due to that resistance there will be voltage drop. And something it is known as armature leakage reactance. Armature leakage reactance. We will be telling what it is. And next is armature reaction. ये आपने सुना है, armature reaction क्या है हम बताएंगे क्या है डिटेलली in the next slides, all the three things. Okay, so first thing, it is the armature resistance. ये है armature resistance. Okay, so it is a resistance drop based on the armature value. So armature का resistance RI बता सकता है, कोई करंट उसमें आ गया तो IaRi ड्रॉप होता है। Okay, so this is the drop, IaRi ड्रॉप। एक वाइंडिंग में ये 3 फेज अल्टरनेटर दिखा है, ये 3 फेज अल्टरनेटर में कोई फेज में 3 फेजेस है, इन 1 फेज एक फेज का रेजिस्टेंस है Ri। ओके, सो आरए रेजिस्टेंस है, उसमें क्या होता है, करंट आई फ्लो होता है। जब करंट आई फ्लो होता है क्या होता है, उसमें ड्रॉप होता है। सो दिस इज नोन एज आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। ओके, सो द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस। ये वोल्टेज ड्रॉप तो क्या है, इट इज IaRi, I into R it is equal to we know the Ohm's law equation। आपको जानता है क्या है वोल्टेज, IR ड्रॉप है IR। तो इसमें IR देखता है आप IaR, आर्मेचर रेजिस्टेंस है R है, आर्मेचर करंट है IA। तो जब लोड करता है आर्मेचर करंट होगा, लोड नहीं है तो आर्मेचर करंट नहीं होगा, कोई आर्मेचर वोल्टेज नहीं होगा, नो लोड हो गया। जब लोड होता है IaRi ड्रॉप होगा, ये ड्रॉप बीट करके बाहर वोल्टेज मिलेगा। ओके, सो रेगुलेशन होने का नंबर 1 रीजन ये है, उसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस है। Okay, so this is known as armature resistance drop. And next condition, it is in phase with armature current. This is important. You already know
वोल्टेज एंड करंट रेसिस्टेंस और यूनिटी पावर फैक्टर में इन फेस होगा, ठीक है। यस, आपने सही कहा, इट इज सेम थिंग, इट विल बी हैविंग व्हाट, इट विल बी हैविंग इन फेस द करंट, इट विल बी इन फेस द वोल्टेज एंड करंट विल बी इन फेस बाय द लोड इज रेसिस्टेंस टाइप। आपको समझ में आया तो अगले स्लाइड पे आएगा वो। लेकिन ये वोल्टेज ड्रॉप इतना ज्यादा नहीं है, जनरली कम होता है, प्रैक्टिकली आर्मेचर रेसिस्टेंस ड्रॉप कम है, ओके। सो हम किसके बारे में बताते हैं, अल्टरनेटर जब लोड करता है उसका वोल्टेज कम होगा। क्यों, उसमें तीन रीजन है। पहला रीजन ये है हमारा आर्मेचर रेसिस्टेंस का वजह से। सो आर्मेचर रेसिस्टेंस से पर फेज वो रेसिस्टेंस ड्रॉप होगा IaRa के वजह से। सो सम वोल्टेज इज गेटिंग रिड्यूस्ड और गेटिंग वेरिएड, okay। So this is happening first due to the armature resistance. So what was the equation, IRA? You remember that it is IRA. Now what is coming, this is the IXL drop। IXL आप सुना होगा, I करंट है, XL तो क्या है, XL तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस तो क्या है, IXL इज इक्वल टू, इन इक्वेशन आपको जानता है 2πfl, L है इंडक्टेंस। सो ये किधर से आता है, ये वाइंडिंग के इंडक्टेंस है क्या। सो देयर विल बी सम इंडक्टेंस इन द वाइंडिंग एंड वी विल बी सीइंग व्हाई आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस इज हैपनिंग, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। सो दूसरा कंडीशन ये है आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस के। सो लेट अस से हमारे पास क्या है अल्टरनेटर में, स्टेटर है, रोटर है, यानी फील्ड होगा, आर्मेचर होगा, फील्ड होगा, आर्मेचर होगा। क्या होता है, तो फील्ड फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स को, आर्मेचर कंडक्ट को काट करना है, ओके। तो फील्ड फ्लक्स आता है, वो पूरा आर्मेचर में आया तो अच्छा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हमारे पास क्या है, एक एयर गैप है, स्टेटर और रोटर के बीच में क्या है, उसमें है एयर गैप। तो क्या होता है, तो फील्ड में फ्लक्स हो गया, वो पूरा आर्मेचर में नहीं आएगा। There is flux generated in the field and the entire flux will not reach to the armature. When the flux is fully reaching to armature, it will be converted into what? It will be converted into voltage. Okay, so this is known as leakage reactance. I'll tell again. We are having stator. Let us say this side. I am saying about this side. This is field. This condition is field. Okay, you are saying field. I have written F. And that is field. In the field, flux will be produced, and the flux will be coming to where? Flux will be coming to this side. This is the stator or armature. I am writing A. This side will be armature. तो फील्ड से फ्लक्स आके आर्मेचर का कंडक्टर को काट करना है, ओके। तो फ्लक्स फील्ड से आएगा और आर्मेचर आना है, लेकिन पूरा आएगा नहीं। पूरा आएगा नहीं, क्या होगा, कुछ तो बीट होगा, वेस्ट होगा, कुछ फ्लक्स तो वेस्ट होगा किधर, एयर गैप में। ये फ्लक्स को बताता है लीकेज फ्लक्स। तो ये क्या है, लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स से क्या प्रॉब्लम है, वोल्टेज कम हो सकता है, ओके। सो दिस इज नोन एज द ड्रॉप ड्यू टू लीकेज फ्लक्स। तो ये जानकारी आपको समझ में आया होगा, लीकेज फ्लक्स क्या है। लीकेज फ्लक्स, तो लीकेज फ्लक्स ये ही है, आपका फील्ड से फ्लक्स आके एक्चुअली आर्मेचर को कट करना है, ओके। पूरा कट किया तो पूरा वोल्टेज आएगा, पूरा कट किया नहीं तो क्या होगा, वोल्टेज कम होगा। तो एक्चुअली फील्ड से जितना फ्लक्स आता है, सोचो 100% फ्लक्स आता है, लेकिन आर्मेचर में आएगा 95। क्यों, ये उसके रास्ते में एयर गैप है, एयर गैप। ये स्टेटर और रोटर में बीच में एयर गैप है, और उसके वजह से कुछ फ्लक्स वेस्ट हो जाएगा। वो हमारे लिए कोई मदद नहीं करेगा वोल्टेज इंड्यूस करने के लिए। उसको बताता है क्या, लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए हम वेस्ट करता है एनर्जी IXL, उसके लिए हम बताता है कुछ फ्लक्स जनरेट करने के लिए हम कुछ वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये तो अभी हो गया दूसरा वोल्टेज ड्रॉप। पहला वोल्टेज ड्रॉप क्या था, IRA, current into armature resistance. Now it is the second drop. What is it? Is IXL, लीकेज फ्लक्स होने के लिए IXL। अभी ये मन में रखना, IRA IXL, ओके। हम अगले जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, वोल्टेज ड्रॉप टू आर्मेचर रिएक्शन। दिस वर्ड आपने सुना है, आर्मेचर रिएक्शन आपको पता है, ओके। हम रिवाइज करेंगे क्या है वो।
वो अल्टरनेटर में भी होता है। ओके, सो हम डीसी जनरेटर को कंपेयर करें तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन है, अल्टरनेटर तो क्या है, एसी जनरेटर। तो अल्टरनेटर में भी आर्मेचर रिएक्शन होगा। तो आर्मेचर रिएक्शन हो गया तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है, हमारा वोल्टेज कम होगा और चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा। तो हम जस्ट बताएंगे आर्मेचर रिएक्शन क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, उसको डीसी जनरेटर में कैसा काम करता है और एसी जनरेटर में क्या डिफरेंस होगा, तो इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, सो आई एम डूइंग टू थिंग्स, आई विल बी जस्ट टेलिंग अबाउट द डीसी जनरेटर फर्स्ट एंड वी विल बी गोइंग टू एसी जनरेटर और अल्टरनेटर। ओके, अभी हम आर्मेचर रिएक्शन के बारे में बताएंगे। तो पहले हम बताएंगे डीसी जनरेटर के आर्मेचर रिएक्शन बारे में और क्या डिफरेंस होता है अल्टरनेटर में, वो बताए तो आपको आसान से अंडरस्टैंड करता है। तो पहले ये पिक्चर में देखो, लेफ्ट मोस्ट साइड में ये फील्ड फ्लक्स है, ओनली फील्ड फ्लक्स, N to S फ्लक्स आएगा। अभी इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, आर्मेचर नहीं है उसमें, आर्मेचर इज नॉट शोन इन द लेफ्ट पिक्चर, इट इज ओनली ड्यू टू फील्ड फ्लक्स। सो फील्ड फ्लक्स क्या है, N से लेके S तक फ्लक्स आता है, आपको समझ में आता है, N से लेके S तक फ्लक्स आता है, उसमें आर्मेचर नहीं है, आर्मेचर शो कर दिया नहीं, तो ओनली फील्ड फ्लक्स है। तो आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन आप चेक करना, N से लेके S तक ये फ्लक्स आता है डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंडीशन हम क्या बताएंगे, अभी इसमें फील्ड नहीं है, इसमें फील्ड नहीं है, आर्मेचर ही है। फील्ड हम अभी इस ई पिक्चर में हम टेक करता ही नहीं, वी आर टेलिंग ओनली अबाउट व्हाट, आर्मेचर ओनली। ओके, सो ड्यू टू आर्मेचर सम फ्लक्स विल बी देयर। ओके, ये फ्लक्स विल बी देयर, दिस इज नोन टू आर्मेचर फ्लक्स। आर्मेचर में करंट होगा, आर्मेचर में करंट होगा, क्यों, आर्मेचर में कब करंट होगा, लोड दिए तो, लोड दिए तो आर्मेचर में करंट होगा, है ना। डीसी सोच करो, डीसी जनरेटर सोच करो, जब आर्मेचर करंट होगा only when it is loaded, when the load is given armature current will be there, and when the armature current is there it is creating a flux. Okay, अभी क्या क्या फ्लक्स आपको समझ में आता है, लेफ्ट साइड में फील्ड फ्लक्स और मिडिल में क्या है, आर्मेचर फ्लक्स। ये दोनों अलग अलग बताता है, सेम समय में हम बताता नहीं। अभी तीसरा सेक्शन में हम क्या बताता है, ये दोनों एक ही टाइम में, ये दोनों एक ही टाइम में आता है। ओके, सो आई एम टेलिंग अबाउट आर्मेचर रिएक्शन। व्हाट अबाउट आर्मेचर रिएक्शन, ये आर्मेचर रिएक्शन डीसी जनरेटर में भी होगा, अल्टरनेटर में भी होगा। ओके, सो आर्मेचर रिएक्शन के वजह से अल्टरनेटर में वोल्टेज चेंज होता है। हमारा टॉपिक ये था क्यों रेगुलेशन आता है, लोड किए तो क्यों वोल्टेज चेंज होता है। तो वोल्टेज आर्मेचर रिएक्शन से, अल्टरनेटर में क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन होगा। हमने डीसी जनरेटर के बारे में सुना है, डीसी जनरेटर में अल्टरनेटर आर्मेचर रिएक्शन होता है, और कुछ डिफरेंस होगा इसमें अल्टरनेटर का आर्मेचर रिएक्शन में। तो डीसी जनरेटर में ये हो गया, डीसी जनरेटर में फील्ड फ्लक्स ये है, डायरेक्टली फील्ड N से S से आता है, और आर्मेचर, ये दोनों सेपरेट करके हम सोचता है, ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली। आर्मेचर फ्लक्स सेपरेटली इन द मिडिल पिक्चर एंड फील्ड फ्लक्स ओनली इन द लेफ्ट पिक्चर, दोनों सेपरेट सेपरेट देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप तीसरा पिक्चर देखना है, तीसरा पिक्चर में क्या है, ये है एक्चुअल आर्मेचर ऑफ और लोड कंडीशन ऑफ डीसी जनरेटर। द थर्ड पिक्चर, दिस इज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ लोडेड जनरेटर। डीसी जनरेटर पे लोड किया तो आप देख सकता है ये फील्ड को क्या हो गया, फील्ड पुराने समय स्ट्रेट लाइन था, अभी क्या हो गया, वो ऐसे चेंज होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ओके, उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, आपको उसका डायरेक्शन चेंज करके देखता है। सो व्हेन लोडेड द अल्टरनेटर और द जनरेटर, इट इज हैविंग चेंज इन इट्स फ्लक्स पोजीशन। ओके, ये फ्लक्स का रास्ता चेंज होता है, फ्लक्स का रास्ता पहले पिक्चर में स्ट्रेट था, लेकिन डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन के वजह से उसका फ्लक्स का पोजीशन चेंज होता है। ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन डीसी जनरेटर में। क्या होता है, आर्मेचर फ्लक्स, आर्मेचर का रास्ता चेंज हो गया, इट इज नोन एज डिस्टॉर्शन। ओके, लेफ्ट साइड में देखो, दिस इज द फर्स्ट पिक्चर, इस साइड पे फ्लक्स स्ट्रेट लाइन होता है, इसी साइड पे फ्लक्स स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन एक
आर्मेचर रिएक्शन हो गया तो क्या होगा, उसका रास्ता ऐसा चेंज होता है, इट इज चेंजिंग द वे और इट इज चेंजिंग द पाथ इनटू डिस्टॉर्टेड, इट इज नोन एज डिस्टॉर्शन। ओके, वो खराब करता है, उसका रास्ता को खराब करता है। हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है वो बताएंगे अभी। ये रास्ता बिगड़ हो गया तो अभी हमारे लिए क्या प्रॉब्लम, हम बताया रास्ता बिगड़ हो गया, ये फ्लक्स का रास्ता बिगड़ हो गया, किसके वजह से, आर्मेचर रिएक्शन के वजह से। तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का फर्स्ट इफेक्ट ये है, आर्मेचर फ्लक्स का रास्ता बिगड़ हो जाएगा, द पाथ विल बी गेटिंग डिस्टॉर्टेड। ओके, नाउ यू विल बी एबल टू सी द सेकंड पार्ट, सेकंड प्रॉब्लम भी बताएंगे। ये सोचो, ये पोल है, ये पोल में पूरा जगह में फ्लक्स इक्वल है, इधर भी फ्लक्स सेम है, इधर भी फ्लक्स सेम है। पहले कंडीशन में फ्लक्स सभी जगह में इक्वल है, पूरा फ्लक्स सेम है तो सेम मैग्नेटिज्म बताता है, फ्लक्स सेम है तो मैग्नेटिक कैपेसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट पोल में सभी समय में सेम है। ओके, इसमें क्या है, दूसरा प्रॉब्लम के बारे में बताता है। सोचो, ये पहले कंडीशन में फ्लक्स आता है, ये पोल के सभी जगह से एक ही फ्लक्स आता है, उसका फ्लक्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सभी जगह एक होगा, सेम होगा। लेकिन इसी जगह पर देखना, हमारा प्रॉब्लम जगह इसी एरिया पे ज्यादा फ्लक्स है और फ्लक्स इसी साइड पे कम हो गया। ओके, फ्लक्स कम हो गया तो फ्लक्स सेम स्ट्रेंथ नहीं बनाया, अभी आर्मेचर रिएक्शन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, उसका दूसरा प्रॉब्लम आ गया डीमैग्नेटाइजिंग। दिस इज द टू प्रॉब्लम ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में दो प्रॉब्लम हो गया, किसके वजह से, आर्मेचर रिएक्शन के वजह से। तो आर्मेचर रिएक्शन का प्रॉब्लम क्या है, द फ्लक्स पाथ इज गेटिंग डिस्टॉर्टेड, ये फ्लक्स का रास्ता डिस्टॉर्ट होता है, यानी तो बिगड़ जाता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ये पोल का स्ट्रेंथ कम होता है, पोल का स्ट्रेंथ कम होता है और इट इज गेटिंग डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है तो मैग्नेटाइज बताता है, ये एरिया पे आप देखता है उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो गया। तो आर्मेचर रिएक्शन डीसी जनरेटर में दो प्रॉब्लम बनाता है, दो प्रॉब्लम अभी आपको पता है, वो पाथ रास्ता बिगड़ करता है और द फ्लक्स पाथ इज गेटिंग डिस्टॉर्टेड, एंड सेकंड प्रॉब्लम इज द पोल इट इज गेटिंग डीमैग्नेटाइज्ड। ओके, डीमैग्नेटाइज्ड मींस मैग्नेटिज्म कम होता है, ये प्रॉब्लम हो गया किसमें, डीसी जनरेटर में। ये डीसी जनरेटर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अल्टरनेटर में भी होगा, लेकिन अल्टरनेटर में कोई और प्रॉब्लम भी आएगा। ये डीसी जनरेटर में आपको समझ में आया, अभी हम जाएंगे एसी जनरेटर में। ये डीसी जनरेटर में पावर फैक्टर का इफेक्ट नहीं है। ओके, ये डीसी जनरेटर में पावर फैक्टर का इफेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि डीसी में क्या है, डीसी में वोल्टेज और करंट है और एक ही टाइप का लोड है, रेजिस्टेंस। डीसी में रेजिस्टेंस लोड ही है, लोड क्या है डीसी में, रेजिस्टेंस। लेकिन जब एसी आ गया, 3 टाइप्स ऑफ लोड हमको जानता है, क्या क्या लोड है एसी में, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो आर्मेचर रिएक्शन अल्टरनेटर में डिफरेंट है, क्योंकि उसका लोड टाइप रेजिस्टेंस ही नहीं, उसके अलावा कैपेसिटर हो सकता है और इंडक्टर भी हो सकता है। उसके वजह से अल्टरनेटर में पावर फैक्टर का इफेक्ट होगा, वो ही हमारा अगला स्लाइड में बताने वाला। तो 3 रीजंस, आर्मेचर में रेगुलेशन होने वाला 3 रीजन हमने बताया। देयर आर 3 रीजंस फॉर द रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर। व्हाट आर दे? फर्स्ट वन, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप, IRA। दूसरा वाला, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, IXL। and this one we can say armature reaction, it is written as IXA, IRA, IXL and IXA. So these are the item, but we have talked only about DC generator. हमने बताया DC generator के बारे में, आर्मेचर रिएक्शन में, आर्मेचर रिएक्शन अल्टरनेटर में पावर फैक्टर डिपेंडेंट होगा, वो अभी बताना है। ओके, हम देखेंगे अभी कोई डीसी जनरेटर में आर्मेचर फ्लक्स और इंड्यूस्ड फील्ड फ्लक्स, दो फ्लक्स बताएगा, फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स दोनों 90 डिग्री के डिफरेंस होगा, ये सभी समय एप्लीकेबल होगा। सोचो, हम बताएंगे एक फील्ड है, ये फील्ड के वजह से कोई ईएमएफ इंड्यूस हो गया हमारा आर्मेचर में। ओके, सो लेंसेस लॉ आप सुना होगा, लेंसेस लॉ बताता है कोई रीजन से ईएमएफ इंड्यूस हो गया, उसको अपोज करना है। व्हाटएवर मे बी द रीजन फॉर प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ, इट बी अपोजिंग द
reason. Now armature flux is produced due to field flux. ये field flux पहला है, पहले आता है कौन सा? field flux. ये field flux द्वारा प्रोड्यूस्ड है armature flux. तो armature flux क्या करेगा? वो field flux को ओपोज करने का तरीका ले लेंगे. तो कैसे ओपोज करेंगे? वो 90 डिग्री वापस आएगा, 90 डिग्री लैगिंग होगा. ये सभी प्रोडक्शन में, सभी इंड्यूस्ड ईएमएफ ये होता है, वो देखेंगे. सो ये अंडरस्टैंड कीजिए, आर्मेचर फ्लक्स सभी समय फील्ड फ्लक्स में 90 डिग्री लैगिंग होगा. पिक्चर देखेंगे अभी अगला स्लाइड में. ऑलवेज डीसी जनरेटर लोड क्या है? रेजिस्टिव लोड है. उसके वजह से आर्मेचर फ्लक्स फील्ड फ्लक्स से 90 डिग्री बिहाइंड होगा. ये बताए तो, ये देख लिए तो आपको समझ में आएगा. ये है हमारा मेन फ्लक्स. मेन फ्लक्स तो फील्ड फ्लक्स. डीसी जनरेटर का फील्ड फ्लक्स ये वाला. ओके, सो ये क्या है हमारा डीसी जनरेटर? आपको शायद रिमेम्बर करता है, डीसी जनरेटर में फील्ड है, शंट फील्ड हो सकता है, एक आर्मेचर होगा. ओके, ये शंट फील्ड में होने वाला फ्लक्स है मेन फ्लक्स. ओके, सो इसमें मेन फ्लक्स देता है हम, और आर्मेचर फ्लक्स भी. ओके, हमको ये जानता होगा डीसी जनरेटर में एक आर्मेचर है और एक शंट फील्ड भी है. ओके, ये याद है आपको. सो इसमें ये शंट फील्ड में जो होने वाला है मेन फ्लक्स, इसको बताता है मेन फ्लक्स. फील्ड फ्लक्स को नाम है मेन फ्लक्स. आर्मेचर में करंट होगा, आर्मेचर में करंट होगा, वो करंट कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, उसको बताएगा क्या? आर्मेचर फ्लक्स. लेकिन ये आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स को ओपोज करना है, क्योंकि लेंसेस लॉ के अनुसार, लेंसेस लॉ के अनुसार ओपोज करना है, तो उसका बिहाइंड आएगा, 90 डिग्री बिहाइंड आएगा. सो दिस इज ऑलवेज करेक्ट फॉर डीसी जनरेटर. क्योंकि उसका लोड पूरा समय रेसिस्टिव है. ओके, रेसिस्टिव है. सो अब देख सकते हैं अभी ये 90 डिग्री का डिफरेंस है, इसको बताता है लैगिंग. ओके, फ्लक्स के आर्मेचर फ्लक्स लैगिंग है, मेन फ्लक्स पहले आएगा और आर्मेचर फ्लक्स 90 डिग्री लैगिंग है. सो डीसी जनरेटर में ऑलवेज फ्लक्स 90 डिग्री लैगिंग है. आर्मेचर और डीसी जनरेटर में कौन सा टाइप लोड है? कौन सा टाइप लोड है? यस, आपने सही कहा, रेसिस्टिव लोड. डीसी जनरेटर में सभी समय रेसिस्टिव लोड रहेगा. और इलेक्ट्रिकल में क्या क्या और टाइप लोड है? उसमें रेसिस्टेंस हो सकता है, उसके अलावा इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. सो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस डीसी जनरेटर में एप्लीकेबल नहीं है और अल्टरनेटर में एप्लीकेबल होगा. सो हम बताना है किसके बारे में? ये आर्मेचर फ्लक्स लोड चेंज ये तो अल्टरनेटर में डिफरेंस होगा. ओके, सो अभी तक हमने बताया डीसी जनरेटर के बारे में. डीसी जनरेटर में ऐसा होता है 90 डिग्री डिफरेंस है मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स. अभी इंपॉर्टेंट ये है, अब अल्टरनेटर को लोड करता है. अगले साइड पे आप देखेगा हम अल्टरनेटर को लोड करता है, अल्टरनेटर को लोड करता है. क्या क्या लोड होगा? रेजिस्टेंस लोड होगा, इंडक्टेंस लोड होगा और कैपेसिटेंस लोड होगा. ये लोड के अनुसार उसका फ्लक्स भी चेंज करेगा, क्योंकि उसमें फेज पोजीशन चेंज करता है. ओके, सो हम उसके बारे में डिटेली अभी देखेंगे. आर्मेचर रिएक्शन के वजह से 3 कंडीशन में हम देखेंगे. लोड रेजिस्टेंस लोड है तो हमने बताया 3 टाइप लोड है, हम बताएंगे रेजिस्टेंस लोड में और जीरो लैगिंग लोड में और जीरो लीडिंग लोड. जीरो लैगिंग एंड जीरो लीडिंग लोड में क्या है जीरो लैगिंग एंड जीरो लीडिंग? ओके, पावर फैक्टर के बारे में आप एक रिविजन कर देंगे. पावर फैक्टर उसका पोजीशन 3 टाइप्स हो सकता है. पावर फैक्टर क्या क्या हो सकता है? पावर फैक्टर ऐसा हो सकता है वो 0 से लेके मैक्सिमम 1 तक आ सकता है. ओके, सो 0 से मैक्सिमम 1 तक, 0 से मैक्सिमम 1 तक. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोड्स. वन इज इंडक्टिव लोड, हम बता सकता है इंडक्टिव लोड. सो इंडक्टिव लोड में 0 पावर फैक्टर बता सकता है. प्योर इंडक्टर, ये इंडक्टर लोड बताया. प्योर इंडक्टर कोई रेजिस्टेंस उसमें नहीं तो उसको बताता है 0. हम पावर फैक्टर 0 बताएंगे उसको. सो इन दिस स्लाइड यू कैन अंडरस्टैंड द वेरिएशन ऑफ पावर फैक्टर. 0 से लेके 1 तक आता है. 1 कब होगा? यूनिटी पावर फैक्टर और रेजिस्टेंस हो गया तो. और कब इंडक्टर हो गया? वो 0 भी बनता है. सो 0.8, 0.7, 0.6 जैसा 0 भी आ सकता है. ओके, 0 कब है? रेसिस्टेंस प्योर इंडक्टर है तो, उसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं, प्योर इंडक्टर है तो उसको पावर फैक्टर आएगा 0.
तो अभी पूछता है मैं पावर फैक्टर का रेंज क्या है, 0 से लेके 1 कब होगा रेजिस्टेंस में, 0 कब हो सकता है, 0 दो कंडीशन में हो सकता है, कौन कौन, इंडक्टर में और प्योर कैपेसिटर में। ओके, प्योर कैपेसिटर है तो 0 होगा, प्योर इंडक्टर है तो 0 होगा, और मिडिल होगा रेसिस्टेंस और कैपेसिटर है तो भी उसका इन बिटवीन वैल्यू होगा, रेसिस्टेंस और कैपेसिटर भी होगा तो उसका इन बिटवीन वैल्यू होगा। तो ये रहेगा पावर फैक्टर का वेरिएशन। ओके, सो ये पावर फैक्टर का वेरिएशन के अनुसार हम देखता है फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स का वेरिएशन। हम किसके बारे में बताता है, आर्मेचर फ्लक्स और मेन फ्लक्स, इसके वेरिएशन लोड के अनुसार। अभी देखता है alternator का load. We are seeing the load of alternator. It is resistance only. Okay, it is resistance only. If it is resistance only, it is same as in DC generator. जनरेटर के DC जनरेटर में जो देख लिया वो ही है इधर, DC जनरेटर है उसमें 90 डिग्री देख लिया वो ही होगा इधर। ओके, सो आर्मेचर फ्लक्स अभी वोल्टेज के इन फेज है, सो रेजिस्टेंस लोड डीसी जनरेटर में क्या हो गया उधर ऐसा ही होगा रेजिस्टेंस में। वो वापस आएंगे रेजिस्टेंस लोड में, तो ये लोड है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लोड। ओके, रेजिस्टेंस लोड है, तो ये दोनों वोल्टेज और करंट ये दोनों इन फेज है। हमारा डीसी जनरेटर में भी रेजिस्टेंस लोड है इन फेज से, तो ये होगा आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स से 90 डिग्री बिहाइंड है। ओके, सो अल्टरनेटर में सोचो अभी हो गया आपका अल्टरनेटर में रेजिस्टेंस लोड डालता है, रेजिस्टेंस लोड डालता है, तो क्या होगा जैसे डीसी जनरेटर में हो गया इसमें भी 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। उसका नेचर बताएंगे डिस्टोर्टिंग, पाथ डिस्टोर्टिंग हमने बताया, पाथ डिस्टोर्टिंग नेचर इधर भी होगा। ठीक है, रास्ता बिगड़ता है, इसमें भी रास्ता बिगड़ने का चांस है। ओके, डिस्टोर्टिंग होगा, जैसे हमने पहले देख लिया रास्ता बिगड़ होता है तो वोल्टेज कम होगा। तो ये कंडीशन में कोई रेजिस्टेंस अल्टरनेटर में डाल दिया तो उसका वोल्टेज कम होता है। ओके, हम देखेंगे अगला कंडीशन, वो है प्योर इंडक्टिव लोड। क्या है, एक अल्टरनेटर है आपके पास, वो अल्टरनेटर में एक प्योर इंडक्टिव लोड दिया। क्या है प्योर इंडक्टिव लोड, इंडक्टेंस है ही, उसमें इंडक्टेंस से कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, प्योर इंडक्टर तो क्या होगा, ये वोल्टेज का लाइन है और करंट का लाइन है, उसका डिफरेंस होगा 90 डिग्री, उसको बताता है 90 डिग्री लैगिंग, करंट है 90 डिग्री लैगिंग। ओके, cos 5 है हमारा पावर फैक्टर, cos 90 होगा 0, सो पावर फैक्टर अभी बन गया क्या 0। ओके, पावर फैक्टर 0 बन गया। सो इसमें क्या है, प्योर इंडक्टर में करंट लैगिंग है, करंट लैगिंग है। ओके, सो रेजिस्टेंस में इन फेज था, अभी 90 डिग्री लैगिंग हो गया। रेजिस्टेंस में आर्मेचर फ्लक्स 90 डिग्री बिहाइंड था, अभी ये प्योर इंडक्टर में क्या होगा, पहले वाला 90 डिग्री, ओके, रेजिस्टेंस में ही 90 डिग्री है, अभी प्लस 90 हो गया, 90 प्लस 90 वी विल बी गेटिंग 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। सो क्या हो गया, this is our main flux abhi bhi same hai, the main flux is having no difference, but you can see the armature flux it is getting out of phase। ये flux दोनों अभी हो गया opposite। ओके, उसको बताता है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, दोनों फ्लक्स ऑपोजिट रहेगा। ओके, दोनों फ्लक्स ऑपोज करेगा तो क्या होगा, एक फ्लक्स दूसरा फ्लक्स को ऑपोज करेगा तो इफेक्टिव फ्लक्स कम होगा, द टोटल फ्लक्स कम होगा। यानी आप कोई इंडक्टिव लोड अल्टरनेटर को दे दिया तो फ्लक्स टोटल हो गया कम, फ्लक्स कम हो गया तो क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन कम होता है, उसको बताता है ये इफेक्ट है डीमैग्नेटाइजिंग। ओके, दिस इफेक्ट इट इज नोन एज डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटर आर्मेचर रिएक्शन। ओके, तो हम किसके बारे में बताता है, अल्टरनेटर का आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। क्यों, आर्मेचर में और अल्टरनेटर में आपने दिया कोई प्योर इंडक्टेंस लोड, तो इंडक्टेंस लोड है, करंट लैगिंग होगा, तो 90 डिग्री पहले ही है लैगिंग, अभी 90 डिग्री और भी बढ़ा, सो 180 डिग्री हो गया। सो दोनों 90 डिग्री कुल मिला के 180 डिग्री होता है,
और टोटल फ्लक्स कम होता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टोटल फ्लक्स कम हो गया तो टोटल वोल्टेज कम होता है। तो ये है इफेक्ट जब अल्टरनेटर को आप इंडक्टिव लोड देता है, उसका वोल्टेज कम होगा क्योंकि डीमैग्नेटाइजिंग हो गया। ओके, ये समझ में होगा तो सोचता हूं मैं एक बार और। ये मेन फ्लक्स है, मेन फ्लक्स को चेंज नहीं, आपने पहले पिक्चर में देखा वही है अभी भी, लेकिन अभी आपका अल्टरनेट का लोड है क्या, इंडक्टर, प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर में क्या होगा, करंट 90 डिग्री लैग करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। हम ऑलरेडी 90 डिग्री लैगिंग है रेजिस्टेंस में, और क्या हो गया अभी 90 डिग्री फिर भी वापस आ गया। सो 90 प्लस 90 क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री हो गया तो बताता है आउट ऑफ फेज। इफेक्ट क्या है हमारे लिए, क्या प्रैक्टिकल इफेक्ट है, दोनों फ्लक्स, मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स टोटली कम होगा, टोटली कम होगा। इफेक्टिव फ्लक्स मशीन में कम हो गया तो आपका वोल्टेज कम होगा, आपका वोल्टेज कम होगा। सो इफेक्ट इज दैट इट इज डीमैग्नेटाइजिंग, और इफेक्टिवली द अल्टरनेटर वोल्टेज विल कम डाउन। ओके, I hope it is clear for everybody. ZPF, ZPF is this one, zero power factor, zero power factor. Power factor, it is the range from 0 to 1. 1, it is at resistance. Actually, power factor is equal to cos phi. Okay, cos phi. Phi means angle between voltage and current. Resistance में voltage and current का difference है 0. Cos 0 to 1. अभी हम बताता है प्योर इंडक्टर के बारे में। प्योर इंडक्टर के बारे में बताते हो, वोल्टेज के 90 डिग्री लैगिंग होगा क्या, करंट। सो 90 डिग्री cos 90 इज इक्वल टू 0। सो पावर फैक्टर हो गया 0। ओके, 0 को बताता है जीरो पावर फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म में ZPF। ओके, सो ZPF लोड है तो आपका अल्टरनेटर का रिएक्शन का इफेक्ट ये होगा डीमैग्नेटाइजिंग, इफेक्टिव फ्लक्स कम होगा। ओके, सो ये हो गया जीरो पावर फैक्टर लोड अंडर इंडक्टेंस में। अभी देखेंगे आप एक कैपेसिटर लोड दे तो, नॉर्मल कैपेसिटर नहीं है, आइडियल कैपेसिटर। आइडियल कैपेसिटर देता है हम, ये वोल्टेज का लाइन है, वोल्टेज का वेक्टर है, क्या देता है, करंट ऐसा है तो क्या है, ये करंट 90 डिग्री लीडिंग है, करंट 90 डिग्री लीडिंग है। समझ में आ गया ना, करंट 90 डिग्री लीडिंग है प्योर कैपेसिटेंस में। तो पावर फैक्टर एंगल 90 बताया। पावर फैक्टर का इक्वेशन क्या है, PF is equal to cos 90, cos 90 is equal to 0। सो ये दोनों कंडीशन सिमिलर है, एक प्योर कैपेसिटेंस में, एक प्योर इंडक्टेंस में। ये प्योर कैपेसिटेंस रहता है, इसका इंपॉर्टेंट डिफरेंस है करंट लीड करता है, करंट लीड करता है। ओके, तो देखेंगे हम ये कंडीशन में, देख लीजिए ये अच्छा है। मेन फ्लक्स अभी भी कोई डिफरेंस नहीं है, मेन फ्लक्स अभी भी सेम है। ओके, लेकिन ये आर्मेचर फ्लक्स को क्या हो गया, आर्मेचर फ्लक्स इन फेज हो गया। क्यों, हम बताएंगे। रेजिस्टेंस में 90 डिग्री बिहाइंड था, अभी कैपेसिटिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है तो लीडिंग है 90 डिग्री। सो 90 डिग्री से 90 डिग्री आगे आ गया। सो 90 डिग्री से 90 आ गया तो 0। सो 0 है इधर जो शो कर दिया, ये मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स अभी हो गया इन फेज और इट इज गेटिंग एडेड। ओके, एडेड मींस प्रैक्टिकली हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है और हमारा एडवांटेज क्या है, आप कैपेसिटर लोड अल्टरनेट को देता है तो when you are giving a capacitor load to alternator, the fluxes is becoming additive। मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स दोनों कुल मिलाते एक होता है, तो क्या होगा, टोटल फ्लक्स ज्यादा होगा। टोटल फ्लक्स ज्यादा है तो एडवांटेज क्या है, वोल्टेज ज्यादा होगा। तो हमने बताया एक कंडीशन पहले ही, कोई लोड कंडीशन में, कोई लोड कंडीशन में क्या होगा, अल्टरनेट का वोल्टेज अधिक होगा किससे, नो लोड से। तो ये है वो कंडीशन, this is the condition when alternator voltage is more than a no load voltage। Okay, at no load it may be having 400 voltage। when you are connecting a high capacitor load, when you are connecting a very high capacitor load, the voltage from 415 it may rise to 430, anyway more than 450। okay, why, because main flux and armature flux it is becoming additive, दोनों फ्लक्स ऐड करता है, दोनों फ्लक्स ऐड किए तो ज्यादा वोल्टेज आएगा, दोनों फ्लक्स ऐड किए तो ज्यादा फ्लक्स मशीन में होगा। ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन अंडर व्हाट लोड, यस यू टोल्ड इट करेक्ट, इट इज कैपेसिटिव लोड। ओके, सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 तरह का लोड है एसी में, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो अल्टरनेटर में क्या डिफरेंस है, अल्टरनेटर का लोड का पावर फैक्टर इंपॉर्टेंट है,
लोड का पावर फैक्टर वैरी करने के अनुसार उसका रेगुलेशन चेंज करेगा। तो क्या है, इंडक्टर और रेसिस्टेंस में वोल्टेज कम होगा, इतना ही है। रेसिस्टेंस लोड और इंडक्टेंस लोड में कनेक्ट किए तो वोल्टेज कम होगा, और कैपेसिटेंस लोड जितना ज्यादा है उसके अनुसार वोल्टेज नो लोड से बढ़ेगा। तो इसका इफेक्ट को बताता है मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट है मैग्नेटाइजिंग। ये इतना जो बताया, ये कुल मिला के हम एक स्लाइड में आता है। लोड टाइप तीनों लोड बता दिया हमने। रेसिस्टेंस है, ये जो अभी तक बताया एक टेबल में बताया, तो रेसिस्टेंस है हमारे पास, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है। तो रेसिस्टेंस लोड में दोनों एक फेस में है, इन फेस। आप देख सकते हैं रेड कलर और ब्लू कलर इन फेस है रेसिस्टेंस लोड में। लेकिन क्या है, हमारा आर्मेचर 90 डिग्री लैगिंग है। राइट साइड एक टेबल में आप देख रहे थे 90 डिग्री। वोल्टेज एंड करंट सेम फेस है, लेकिन आर्मेचर 90 डिग्री लैगिंग है। ओके, ये है बेस कंडीशन, ये है बेस कंडीशन। पहला रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम है और आर्मेचर 90 डिग्री लैगिंग है। ओके, अभी दूसरा कंडीशन में क्या हो गया, इंडक्टेंस में। इंडक्टेंस में ये हो गया, उसका करंट लैगिंग हो गया, पहले से लैगिंग हो गया। देख सकता है ये ब्लू लाइन इसमें इन फेस है, लेकिन ये करंट का ब्लू फेस मिडिल में, और इंडक्टेंस में 90 डिग्री लैगिंग बन गया। सो पहला वाला 90 और ये 90 लैगिंग दोनों मिलके 180 डिग्री आउट ऑफ डिग्री बन गया। इट इज ऑपोजिंग। सो इंडक्टेंस लोड है तो वो ऑपोज करेगा, टोटल फ्लक्स कम होगा, टोटल वोल्टेज कम होगा। और कैपेसिटर लोड में क्या होता है, इंडक्टेंस कैपेसिटर लोड में करंट लीडिंग कर दिया, करंट लीडिंग कर दिया तो 90 minus 90 actually the flux, main flux and armature flux will be in phase. Okay, so this is happening in the alternator. Okay, so armature flux vary करता है। Okay, so you आपके पास एक अल्टरनेटर है। okay, अल्टरनेटर में कब आर्मेचर करंट होगा, अल्टरनेटर में कब आर्मेचर करंट होगा, यस आर्मेचर में करंट होगा जब लोड दिए तो। ओके, लोड दिए तो आर्मेचर फ्लक्स होगा। तो दो फ्लक्स अभी मशीन में क्या क्या, मेन फ्लक्स है और आर्मेचर फ्लक्स है। ये आर्मेचर फ्लक्स लोड के अनुसार वैरी करता है, लोड के अनुसार। ओके, रेसिस्टेंस है तो 90 डिग्री डिफरेंट है, और प्योर इंडक्टेंस है तो इन आउट ऑफ फेस होता है, आउट ऑफ फेस इट इज जनरली कैंसलिंग ईच अदर और रिड्यूसिंग टोटली। और कैपेसिटेंस लोड है तो इन फेस होता है। तो लोड के अनुसार आर्मेचर फ्लक्स का लीडिंग और लैगिंग पोजीशन चेंज होता है, उसके अनुसार वोल्टेज में वेरिएशन होगा। तो ये है आर्मेचर फ्लक्स का वेरिएशन और आर्मेचर रिएक्शन का वेरिएशन। तो हमने बताया रेजिस्टेंस में डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है किसमें, लैगिंग में, और मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है। सो प्रैक्टिकली क्या होता है वो एक पिक्चर में दे देंगे, देख सकता है। प्रैक्टिकल कंडीशन में बता देंगे, अल्टरनेटर का प्रैक्टिकल कंडीशन, कोई रेजिस्टेंस लोड डाल दे तो उसका वोल्टेज कम होगा। ओके, अल्टरनेटर का कोई इंडक्टेंस लोड दे दिया तो उसका भी वोल्टेज कम हो गया होता है। और व्हेन यू आर लोडिंग विद कैपेसिटी लोड, देन देयर इज अ चांस फॉर इंक्रीजिंग द दिस आइटम, दिस मींस वोल्टेज। ओके, सो इसके बारे में बताए तो पावर फैक्टर अल्टरनेटर पे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, पावर फैक्टर तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, तो पावर फैक्टर इंडिपेंडेंट बनाता है। सो मेक द इंडिपेंडेंट ऑफ पावर फैक्टर, वी विल बी रेटिंग द कैपेसिटी ऑफ अल्टरनेटर केवीए। अल्टरनेटर क्या कैपेसिटी में बताएगा, केवीए में, क्योंकि वो पावर फैक्टर इंडिपेंडेंट होना है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर एक वाइंडिंग करता है, वाइंडिंग में फिक्स्ड करंट ले सकता है, लेकिन ये पावर फैक्टर चेंज हो गया तो करंट इंक्रीज कर सकता है, वो गड़बड़ कर सकता है। तो पावर फैक्टर कस्टमर का चेकिंग कंडीशन पे है। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो केवीए में और अपैरेंट पावर में उसका कैपेसिटी दे देगा। ओके, नाउ विल बी सीइंग सम मेथड्स ऑफ फाइंडिंग E0। हमने बताया E0 माइनस V है, V by V है रेगुलेशन। हमको क्या करना है, अभी E0 फाइंड आउट करना है। तो वी विल बी सीइंग सम आइटम्स। So before that, this item we will be just revising what is that. This is resistance, reactance and impedance. That is known as impedance triangle. Resistance opposite to the current है, reactance तो
वो कैपेसिटर में और इंडक्टर में होने वाला ऑपोजिशन है, रिएक्टेंस बताता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी आपको जानता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये दोनों का सम है एसी सर्किट में टोटल ऑपोजिशन। डीसी सर्किट में क्या होगा, रेजिस्टेंस। डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस ही होगा, लेकिन एसी सर्किट में क्या होगा, इम्पीडेंस। ये इम्पीडेंस तो क्या है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का वेक्टर एडिशन है। ये आपको जानकारी होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इम्पीडेंस। सो ये रिविजन करना था क्योंकि हम बताएंगे, देख लीजिए। ये अल्टरनेट का वोल्टेज है V, ओके, अल्टरनेट का वोल्टेज V। नाउ वी आर गिविंग I। सो क्या तरह का लोड है ये वाला, रेजिस्टेंस लोड, क्योंकि इन फेज है, इन फेज है ये वाला। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या, 3 ड्रॉप्स हमने बताया, IRA, IXL एंड IXA। IRA कैसे होगा, ये I के इन पैरेलल, I ना, I जैसे फ्लो ड्रॉ कर दिया, सेम उसका पैरेलल होगा इसी साइड पे। IRA एंड I विल बी इन पैरेलल, क्योंकि वो इन फेज है। तो ऐसा करेगा, IRA के 90 डिग्री एडिशन होगा IXL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, सो दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड दिस इज व्हाट इट इज नोन एज IXA, दिस इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन, IXA। ये कुल मिला के हम बताएंगे आर्मेचर रिएक्शन। एक्सेस में आता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस। एक्स तो रिएक्टेंस है, ये रोटेटिंग फील्ड में होता है, उसके वजह से हम बताएंगे इसको सिंक्रोनस रिएक्टेंस। सो 2-3 चीजें लोड वोल्टेज कम होने के लिए, रेजिस्टेंस ड्रॉप, रिएक्टेंस ड्रॉप एंड आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ये रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस हम मिला के बताएंगे सिंक्रोनस इंपीडेंस ड्रॉप, सिंक्रोनस इंपीडेंस ड्रॉप। ओके, सो दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रिएक्टेंस ड्रॉप एंड दिस इज द इंपीडेंस ड्रॉप। तीनों मिलके बताता है IZS ड्रॉप। ओके, सो ये रहा हमारा E0। सो ये है अल्टरनेटर का वेक्टर डायग्राम। जब उसमें रेजिस्टेंस लोड है तो उसका रेजिस्टेंस लोड। अभी इसमें रेजिस्टेंस लोड आपको कैसे बता सकता है, यस, वोल्टेज एंड करंट इन फेज है, वोल्टेज एंड करंट इन फेज से हमको बता सकता है। ये लोड टाइप क्या है, ये लोड टाइप बता सकता है रेजिस्टेंस लोड है। ओके, ये रेजिस्टेंस लोड में अल्टरनेट का E0 ऐसा बता सकता है। ये ड्राइंग एक बार और बता देंगे, वापस करके देख लेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, आपका नीमी टेक्स्ट में भी यही होगा। तो हमारा वोल्टेज है अल्टरनेटर का, ये करंट है इन फेज। इससे आपको पता चलता है क्या, वो रेजिस्टेंस लोड है। वोल्टेज एंड करंट इन फेज है तो इट इज रेजिस्टेंस लोड। अभी क्या बताना हमको, क्या देखना है, E0 क्या है, E0 क्या क्या ड्रॉप से आता है। ये ड्रॉप होगा पहले IRA एंड IA। आप ड्रॉ करने के समय क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों पैरेलल होना है, दोनों पैरेलल अब है ऐसा IRA एंड 90 डिग्री ऐड करना है वेक्टरिकली XL, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस से और आर्मेचर रिएक्शन से। ये दोनों मिलके एक नाम बताया कि क्या है वो, IXS। एक्सेस इज सिंक्रोनस रिएक्टेंस। सिंक्रोनस भाई सिंक्रोनस बताता है, जब रोटेटिंग है उसको बताता है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस मोटर सभी आपको जानता है ना। सो रिएक्टेंस रोटेटिंग मशीन में है तो उसको बताता है क्या, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। सो ये रेजिस्टेंस और सिंक्रोनस रिएक्टेंस का वेक्टर एडिशन है सिंक्रोनस इंपीडेंस, नाम है सिंक्रोनस इंपीडेंस, दैट इज ZS। ये सिंक्रोनस इंपीडेंस से वोल्टेज ड्रॉप होता है IZS। दिस इज द ड्रॉप IZS, इट इज नोन एज सिंक्रोनस इंपीडेंस ड्रॉप। ये ड्रॉप है वोल्टेज से ऐड करना, तो वोल्टेज प्लस सिंक्रोनस इंपीडेंस ड्रॉप दैट इज IZS will be getting the originally induced EMF। क्या है मतलब, अल्टरनेटर का आर्मेचर में E0 वोल्टेज इंड्यूस कर दिया। क्या है, अल्टरनेटर का आर्मेचर में E0 EMF इंड्यूस कर दिया, उससे क्या ड्रॉप होता है, IXS तो है सिंक्रोनस रिएक्टेंस से कुछ ड्रॉप होता है और आर्मेचर रिएक्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस से कुछ ड्रॉप होता है। ये दोनों ड्रॉप के सब एक बताता, एक कुल मिलाकर बताता है IZS, दैट इज सिंक्रोनस इंपीडेंस ड्रॉप। सो इंड्यूस्ड EMF से सिंक्रोनस इंपीडेंस ड्रॉप माइनस किया तो हमको क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। सो ये रहा यूनिटी पावर फैक्टर लोड का कंडीशन। ओके, सिमिलरली यू विल बी एबल टू ड्रॉ द कंडीशंस इन व्हाट लैगिंग लोड। सेम ही है लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, आप देख सकता है कुछ लैगिंग है, ये लैगिंग कर दिया
वोल्टेज एंड करंट लैगिंग हो गया, तो बता सकता है क्या टाइप का लोड है? यस यू आर राइट, इट इज लैग लोड। लैग लोड में क्या होगा, ये करंट और IRA पैरेलल हो गया, वही है, उसमें पैरेलल ड्रॉ करना है। I एंड IRA अभी पैरेलल ड्रॉ कर दिया, बाकी सभी सेम है। ओके, तो वो यूपीएफ लोड हो यानी रेजिस्टेंस लोड हो, ड्रॉइंग करना सेम ही मेथड है, लेकिन I और IRA पैरेलल हैगा सभी जगह। ओके, ये रहा हमारा लैगिंग लोड पे, और नेक्स्ट रहेगा लीडिंग लोड पे। दिस इज ए लीडिंग लोड इक्वेशन। Okay, so when the leading load, what is the difference? The current it is leading here, and IRA where it is, it is in this method, and IRA will be parallel to that. So all other remains same. E0 we can find out. This is in leading load condition में vector diagram. ये हमारा नीमी पे drawing है, आप देखा होगा। और ये लीडिंग पावर फैक्टर है तो वोल्टेज इंक्रीज करने का चांस है, नीमी का साथ ही है। लोड पावर फैक्टर लीडिंग है तो वोल्टेज अधिक होगा, और जब वो रेसिस्टिव और लैगिंग पावर है तो उसका वोल्टेज कम होगा। ओके, तो ये फाइंड आउट करना है, E0 फाइंड आउट करने का कुछ मैथमेटिकल मेथड है हमारे पास। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन। नाउ in the next class what we are going to see is we'll be finding out a method to find out E0। E0 ये ट्रायंगल से हमको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट करना पड़ेगा IXS IRA देखने के लिए। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा ये पूरा टेस्ट कैसा होता है। ओके, सो दैट विल बी द नेक्स्ट मेथड हाउ टू फाइंड आउट दिस E0, and we have told about few armature reactions and all today, and I hope it is clear. This video will be available in NIMI YouTube channel. You will be able to go there and find out. And this particular PPT, it is available at bit.ly / my alternator class. Okay. You can go there, find out. Thank you for being with us. We'll be joining back for alternator regulation with